آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا گیا۔ بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا۔ سابق بلدیاتی نمائندوں نے فیصلے کو سراہا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حکومت سے فیصلے پر جلد از جلد عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ سابق بلدیاتی نمائندوں نے فیصلے کو سراہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت سے فیصلے پر جلد از جلد عملی اقدامات کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب لوکل گورنمنٹ کا سیکشن 3 کے آرٹیکل 140(a) کے خلاف قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے بلدیاتی انتخابات کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 140 کے تحت قانون بنایا جا سکتا ہے، لیکن اداروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کے ڈیروں پر جشن کا سماں ہے، مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ سٹی 41 کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کے ڈیروں پر جشن کا سماں ہے، مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں حنان بخاری سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی، بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کے بعد فیصل آباد میں جشن کا سماں ہے۔ یہاں پہ اس وقت میں ہمارے ساتھ امین بٹ جو کہ ڈپٹی میئر تھے لیکن اب پھر سے بن چکے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ڈول کی تھاپ پہ رقص کیا جا رہا ہے، نوٹوں کی بارش کی جا رہی ہے، پھولوں کے گلدستے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور آج خوب جشن مسلم لیگ نمائندوں کی جانب سے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ امین بٹ موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر چیئرمین صاحبان بھی موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا بٹ صاحب، دوبارہ سے ڈپٹی میئر بن گئے آپ، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ 41 کا، نان بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ آپ لوگوں نے جس طرح ہمارے جو مطلب جو لوگ تھے ہمارے ووٹر سپورٹر اتنے تنگ آ چکے تھے جب یہ ادارے توڑے، تو آج جب یہ ادارے بحال ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے، آپ 41 نے یہ جاگر کیے تھے فیصل آباد سے، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ڈپٹی میئر بحال ہو گیا ہوں۔ یہ میں نہیں بحال ہوا، یہ فیصل آباد کی پوری عوام بحال ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہمارے میئر فیصل آباد ہے، انہوں نے تمام میئر لے کر سپریم کورٹ کی ہوئی تھی، تو آج میں میئر فیصل آباد کا بھی، پوری فیصل آباد کا تمام تاجر ڈپٹی میئر ہے، تمام غریب لوگ ڈپٹی میئر ہیں، تمام ریڈی والے ڈپٹی میئر ہیں، تو آج انہوں نے میرا استقبال کیا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح یہ کارپوریشن نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، کارپوریشن کے سی او سن لو، آج کے بعد اگر تم نے کرپشن کی تو تمہارا ڈنڈوں کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، کیونکہ میں غریبوں کا ساتھی ہوں۔ انہوں نے ہزاروں لوگ بے روزگار کیے ہوئے ہیں اور ان کی دعاؤں سے میں آج دوبارہ ڈپٹی میئر ہوا ہوں، اور میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ بتہ گھور ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ورنہ مجھے صحیح کرنا آتا ہے۔ جب میں بحال ہوا عوام تو خوش ہوئی ہے، لیکن جو کارپوریشن والے جو عملہ ہے وہ بیچارہ ناخوش ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اب امین بٹ ڈنڈے سے کام لے گا، ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ جو بتہ لے گا اس کو میں ڈنڈوں سے صحیح کروں گا، مجھے صحیح کرنا آتا ہے، نہ میں رشوت لیتا ہوں۔ جی حنان بخاری، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ ڈپٹی میئر امین بٹ کے ڈیرے پر موجود ہیں، جشن کا سماں ہے، ڈول کی تھاپ پر جشن جاری ہے، پھولوں اور نوٹوں کی برسات کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا ہے، بلدیاتی ادارے بحال ہوتے ہیں، نمائندگان اپنے آفس پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین رانا احد نے میونسپل کمیٹی آفس اپنی سیٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ کاؤنسلر رفیق عرف طوطا غلام عباس بھی آفس پہنچ گئے ہیں۔ ٹی ایم اے عملے کی جانب سے نمائندگان کا استقبال کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں علی رضا سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔
पुराना जहाँ पे पहले वो बैठते थे वहाँ पे ऑफिस में पहुंच के जो है उस पे सीट के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। जो मुतलका यहाँ पे चेयरमैन है राना आहद साहब, उनके साथ 2 काउंसलर रफीक और तोता जो है वो वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे उनका भरपूर तरीके से जो नुमाइंदगान थे उन्होंने इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पे जो है वो रक्स भी किए गए। उनका ये कहना है कि जो हम पे जिम्मेदारी डाली गई थी अब वो दोबारा उसी तरीके से शुरू करेंगे। जो हमें काम थे, जो हमारे इलाके के बल्दियाती काम रहते हैं वो हमने मुकम्मल करने हैं। तो बल्दियाती जो म्यूनिसिपल कमेटी का अमला है उन्होंने जो है फूलों के हार के साथ उनका इस्तकबाल किया, जिस पर जो है वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे और उनका ये कहना था कि आइंदा रोज में जो है वो हम पे जिम्मेदारियां वो हमको मुकम्मल करेंगे और जो काम हमारे जिम्मे लोगों ने लगाए हैं, हमें जो वोट दे के हमें कामयाब करवाया था लोगों ने, उन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करेंगे। ये बड़ा फैसला आने के बाद इस वक्त जो है बल्दियाती खुलने वाला जो टाउन है वहां पे जो है वो एक जश्न का समा है, जहां पे काफी तादाद में जो लोग हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं और उसके साथ साथ मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं और इस वक्त जश्न का समा है म्यूनिसिपल कमेटी खुलेवाला में। जी जश्न का समा है। बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें कि बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया। बल्दियाती इदारे बहाल होते ही नुमाइंदगान अपने ऑफिस पहुंच गए। चेयरमैन राना अहद ने म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस अपनी सीट पर कब्जा कर लिया। काउंसलर रफीक उर्फ तोता, गुलाम अब्बास भी ऑफिस पहुंच गए। टीएमए अमले की जानिब से नुमाइंदगान का इस्तकबाल किया गया है। यह मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती इदारे बहाल होते ही नुमाइंदगान अपने ऑफिस पहुंच गए। चेयरमैन राना अहद ने म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस अपनी सीट पर कब्जा कर लिया। काउंसलर रफीक उर्फ तोता, गुलाम अब्बास भी ऑफिस पहुंच गए। टीएमए अमले की जानिब से नुमाइंदगान का इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त ये मनाजिर सिटी 41 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है। फैसलाबाद में बल्दियाती इदारे बहाल होते ही नुमाइंदगान अपने ऑफिस पहुंच गए। चेयरमैन राना अहद ने म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में अपनी सीट पर कब्जा कर लिया। काउंसलर रफीक उर्फ तोता, गुलाम अब्बास भी ऑफिस पहुंच गए। टीएमए अमले की जानिब से नुमाइंदगान का इस्तकबाल किया गया। नुमाइंदगान की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है। बल्दियाती इदारे बहाल होते ही नुमाइंदगान अपने ऑफिस पहुंच गए हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। जफर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आर्टिकल का 140A के खिलाफ करारदाद देते हुए पंजाब के बल्दियाती इदारों को सरबहाल कर दिया है और फैसलाबाद में नुमाइंदगान ने अपनी सीटों पर कब्जा कर लिया है। क्या कहिएगा इस हवाले से? जी, बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान के ये जो हालिया तारीख है उसका एक बहुत अहम तरीन फैसलों में से है। एक तरह से पंजाब में एक मतवाजी हुकूमत बन जाएगी पीटीआई के मुकाबल, क्योंकि ज़्यादातर बल्कि तकरीबन तमाम जो मेयर और चेयरमैन ज़िला कौंसिल थे, तमाम 36 ज़िला के वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था। तो यूँ ये होगा, इस फैसले पर अगर अमल दरामद होता है तो पंजाब भर के बल्दियाती अदारों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और सरकारी बाकी डीसी वगैरह कमिश्नर वो पीटीआई के होंगे। तो बहुत दिलचस्प सूरत-ए-हाल होगी और ये एक बहुत तारीख साज फैसला है जिसमें बल्दियाती अदारों को बहाल किया गया और ये कहकर किया गया कि इसको किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता था। बल्दियाती अदारों को मुख्तसर मुद्दत के लिए तो हो सकती है चीज़, लेकिन इतनी तवील मुद्दत के लिए आप अदारों को ख़त्म नहीं कर सकते। मौजूदा जो बल्दियाती अदारे जो बहाल हुए हैं, जो गुज़श्ता 1.5-2 साल से मुअत्तल कर किए रखा था, जिसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और बल्दियाती इंतखाबात भी मुनक्कद नहीं करवाए जा रहे थे, उनकी मियाद इस साल के इख्तिताम पर ख़त्म होगी। तो यूँ ये पूरा साल अगर ये बल्दियाती नुमाइंदे अपने दफातर में बैठते हैं और गवर्नमेंट मौजूदा फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर नहीं करती और इस पर अमल हो जाता है फैसले पर, तो पाकिस्तान में अब पंजाब में एक नया कल्चर देखने में आएगा। बहुत भरपूर बहुत एक्टिविटी होगी, क्योंकि एक तरफ पीडीएम मूवमेंट चला रही है तो दूसरी तरफ उसके तमाम जो पंजाब भर के इजला में उनके अपने बल्दियाती नुमाइंदे बैठे होंगे। तो जफर डोगर साहब, ये तो सिचुएशन बन जाएगी ना, एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ ओपोजिशन, तो दोनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा काम करने के लिए। म्यूनिसिपल सर्विसेज हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन हो गई, ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वगैरह है, तो फिर तो इनको कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। तो ये तो एक मजे की चीज देखने में आने वाली है। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कोलैबोरेशन के साथ चलेंगे तो मामला चलते रहेंगे,
जहां जहां एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश होगी वहां वहां मामला खराब होंगे। और ये बल्दियाती अदारों से मुताल्लिक फैसला आते ही जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने दफातर में पहुंचना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जगहों पे ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने अपने दफातर पर कब्जा भी कर लिया, वहां जाके बैठना शुरू कर दिया है, चार्ज ले लिया है। अभी मेयर फैसलाबाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में थे तफसीली फैसला लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए। वो भी यकीनन वहाँ बाकी मेयर की मुशावरत से अपने अपने अच्छा जफर डोगर साहब, ये सेहरा भी फैसलाबाद के सर पर गया कि मेयर फैसलाबाद ने ही सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और जो है ये तारीख साज फैसला भी सामने आ गया। जी बिल्कुल, मेयर रजाक मलिक की ये रिट थी जिस पर बाकी भी तमाम जो मेयर थे उन्होंने इसको इंडोर्स किया था और इनके साथ मिलकर वो भी फरीक बने। लेकिन ये क्रेडिट बहर रजाक मलिक मेयर फैसलाबाद को जाता है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बल्दियाती अदारे बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिए हैं। और इनकी बहाली के साथ ही जो नुमाइंदे हैं वो जश्न मना रहे हैं और बहुत ही एक दिलचस्प मंजर है कि मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। जफर डोगर साहब ये भी बता दीजिए, जैसे आपने अभी बताया कि 1 साल का अब इनके पास जो है वो अरसा होगा, इस साल के आखिर में मियाद खत्म होगी इनकी सीट्स की, तो कब से ये रिज्यूम करने जा रहे हैं बाकायदा ऑफिशियली, कब से अपने चार्ज संभाल लेंगे ये लोग? तो जब अदालती फैसला हो जाता है तो वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होता है। अब सवाल इसके कि अगर एक आध रोज में सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील अगर गवर्नमेंट दायर करती है और उसके हवाले से वक्ती तौर पर हुक्म इम्तनाई भी मिल जाता है कोई, जिसका इम्कान बज़ाहिर बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर नजर आ रहा है, क्योंकि उसी बेंच में नजरसानी की अपील चलना होती है जिसमें फैसला किया जिसने दिया होता है। तो मैं समझता हूँ एक आध रोज में ये बल्दियाती नुमाइंदे अपने अपने दफातर पहुंचेंगे, मेयर्स अपने अपने दफातर जाएंगे। अब उनको चार्ज फौरी तौर पर उनके हवाले किया जाता है नहीं किया जाता, वो अलग से एक मनाजर होंगे जो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर फौरी तौर पर उनको इस फैसले की रोशनी में असूलन तो फौरी तौर पर उनको चार्ज दे देना चाहिए और बल्दियाती अदारे बहाल होते ही अब लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स जो है वो अमली तौर पर एक नए मंजर के साथ एक नए अंदाज से सामने आएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे, मियाद पूरी होने के करीब पहुंचने वाली है 8-9 माह के बाद, तो 9 माह के बाद, तो उसमें इस कोशिश इनकी ये होगी नून लीग के जो मेयर्स हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती अदारों के उसमें गली महल्ले के काम करवाएं ताकि वो दोबारा इलेक्ट हो सकें। जबकि गवर्नमेंट की कोशिश ऐसी हो सकती है, होनी तो नहीं चाहिए, कि वो इनको फंड ना दें और कोई रुकावटें पैदा करें, क्योंकि हमारी सियासत का यही वतीरा रहा है कि एक दूसरे को चलने नहीं दिया जाता। अलबत्ता शहर के और शहरियों के मफाद जी, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो फैसला आया है गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आप किस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया सर। अभी हम रुक करेंगे। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा सिटी 41 इस वक्त मौजूद हैं अता मुइनुद्दीन के डेरे पर, वहां पर भी जश्न का समा है और वहां पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जहां आज की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बल्दियाती अदारे बहाल किए गए हैं, तो आज उनके डेरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। इसी हवाले से बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं क्या जज्बात है। जी बताइएगा, मिठाइयां खाई जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा अहम फैसला आया है जी, बड़ा अहम फैसला आया, क्या कहेंगे? यकीन जी, ये जीत जो है ये अदलिया की जीत है और सबसे बड़ी बात ये जो गली मोहल्ले के मसाइल थे, बल्दियाती अदारे बहाल होने से मसाइल जो है वो कम होंगे और सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत है, नवाज शरीफ की जीत है, मरियम नवाज की जीत है, शहबाज शरीफ की जीत है और फैसलाबाद में चौधरी शेर अली की जीत है। क्या कहेंगे? ये हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के और सुप्रीम कोर्ट के कि जिन्होंने जो बहुत अच्छा फैसला दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में एक नई रूह फूंक देगा और इंशाल्लाह जो गली मोहल्लों CC 78 के रुके हुए काम थे, इंशाल्लाह ताला वो सब पाया तकमील को पहुंचेंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जब से इदारे हमारे ख़त्म हुए हैं उसके बाद बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। अभी तक कोई हमारे तरक्याती काम नहीं हुए, वहाँ के वहीं स्टॉप हो गए। तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि जिसने ये जी अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप इस वक्त मौजूद थे अता मुइनुद्दीन के डेरे पर।